So our first topic is rare earth metals, okay? And this was in news and practically can be asked in this prelim exam. So let's see what are these rare earth elements, okay? So these rare earth elements are a set of 17 chemical elements found in the Earth's crust that are vital to many modern technologies. Okay. So these are particularly 17 elements. So maybe you have read about this periodic table. Okay, periodic table is a basically table which denotes the mass number as well as the atomic number of the various elements. Okay, और उनको एक कैटेगरी में रखती है, periodic table उसको अरेंज करती है so that जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो एक तरह से अरेंज हो. Okay? तो उसको रोज और कॉलम वाइज periodic table को हम अरेंज करते हैं. एंड उस periodic table में यदि हम लोग देखें so there are 17 elements, okay, 17 chemical elements which include 15 lanthanides and apart from these 15 lanthanides there are two other elements like scandium and yttrium, okay, in the periodic table, and these 17 elements are called the rare earth elements. Okay, so maybe I don't know that whether you know this periodic table or not. You can search for this also. So कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से ये periodic table होती है. Okay, this is a basically lanthanide series. Okay, so these are basically you can count this. These are the basically lanthanide series. Okay, उसके अलावा दो एलिमेंट मैंने आपको और बताए. इसको आप लोग अलग से नेट पे सर्च भी कर सकते हो. दैट lanthanide series करके भी सर्च कर सकते हो. ओके, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से सर्च कर सकते हो. रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से हैं तो आपको वो डिनोट कर देगा इनमें से कौन कौन से हैं. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की दैट 15 lanthanides and scandium and yttrium. And so just a second. Yes. See. आई होप आप लोगों को पता लग रहा होगा यहाँ पे. इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. मे भी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे. So these are the lanthanides, okay? These are actinides. So rare earth elements बेसिकली क्या होते हैं? ये lanthanide series है पूरी की पूरी. Okay? These are the 15 elements, and apart from that, there are two other elements also, scandium and yttrium. So these are basically rare earth elements. तो इधर जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, ये सब एक कॉलम वाइज एक्सिस से ऐसे प्रोडक्ट अरेंज होती है. These are the basic elements, okay? These are boron, carbon, hydrogen, etc. This is basically periodic table. So these rare earth elements contains the 15 lanthanides plus scandium and yttrium, okay, in the periodic table.
So they have similar chemical properties as the lanthanides. These yttrium and the scandium, okay. ये जबकि lanthanide series उस basically रो में आपको नहीं मिलते, but these two elements, scandium और yttrium है, उनकी same property होती है जैसे lanthanide की होती है, and that is why इनको भी यदि lanthanides के साथ क्लब करके हम देखें तो these 17 elements are called rare earth elements. Okay? So एक नाम से कंफ्यूज नहीं होना है. रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसका मतलब ये नहीं है कि ये एलिमेंट्स मिलते नहीं है या बहुत कम है, एक्सट्रीमली लेस है, ऐसा नहीं है. ओके, बेसिकली इनका नाम रेयर अर्थ गलती से रख दिया इन लोगों ने. एक्चुअली है क्या कि ये एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है अर्थ के ऊपर. ओके, बट दीज आर वेरी डिस्पर्स्ड और वेरी स्कैटर्ड. ठीक है, इधर उधर ऐसे एकदम ऐसा नहीं है कि एक पूरी माइन है जिसके अंदर बहुत सारे आपको एकदम से आप माइनिंग करोगे उसमें से एलिमेंट्स निकल जाएंगे. These are very dispersed. पूरे वर्ल्ड ओवर काफी डिस्पर्स्ड है, and that is why it is called rare earth elements. Okay. So they are similar. They have similar properties as the lanthanides. These two elements, scandium and yttrium. So these elements are called rare earths because their uneven distribution on the Earth's crust. Okay, ये बात याद रखनी है. That is rare earths इसलिए बोला जाता है that because there is a uneven distribution or these elements are very dispersed in the Earth's crust. Okay. So making it difficult to extract large quantities from any single place. उसकी माइनिंग काफी डिफिकल्ट है. इट्स नॉट इकोनॉमिकल इन फैक्ट. ओके, तो कहीं कहीं पर जहाँ पर बहुत ज्यादा रिजर्व है जैसे कि चाइना, तो वहां पर मे भी कुछ इकोनॉमिकली ये वायबल हो सकता है. इनफैक्ट इंडिया में अच्छे खासे रिजर्व है हमारे पास. ओके, तो वहां पर थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो सकती है माइनिंग इसकी, बट ओवरऑल ऑन एंड एवरेज इट्स माइनिंग इज लेस इकोनॉमिकल. दैट मींस माइनिंग इज डिफिकल्ट. So out of these 17 rare earths, सीरियम is the most abundant rare earth element. So ये भी याद रखने की information. तो जो 17 rare earth elements हैं, उनमें से सीरियम जो हमने पहला वाला element देखा था lanthanide series का, so that is the most abundant among these rare earth elements. Okay. और otherwise सबसे abundant element कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? सबसे ज्यादा जो मिलने वाला element कौन सा है? Yes. The most abundant element in the Earth's crust. इसको हम 2-3 बार बात कर चुके हैं इसके बारे में. Anybody? In environment as well as geography we have talked about it. किसी को नहीं याद है? So it's basically no feldspar. I am asking about element. Silica. Not silica. Okay, I am asking first of all asking about element. सबसे ज़्यादा abundant element कौन सा है? So oxygen and silicon. These are the two most abundant elements first of all. Okay. सबसे ज़्यादा oxygen and feldspar is a combination of both right. of these. वो mineral है. Feldspar is a mineral. I am asking about element. So element में बात करें तो सबसे ज़्यादा abundant oxygen, then silicon, and third most abundant क्या है? Aluminium. Okay. Aluminium. Aluminium is the third most abundant element. And metal में जो पूछे सबसे ज़्यादा abundant metal कौन सा है? Then you will say aluminium. सबसे ज़्यादा ये जो oxygen और silicon है ये non metals हैं. Okay. And then सबसे ज़्यादा मैं पूछूं कि abundant metal कौन सा है? Then it is aluminium. And this cerium which is the part of this rare earth, it's the 25th most abundant element in the Earth's crust. Okay, उसकी ranking 25th है. The most abundant element देखें तो हम लोग. So out of this rare earth, cerium is the most abundant rare earth element, while promethium is radioactive. और इनमें से एक एलिमेंट है promethium, which is a radioactive in this lanthanide series. तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है. ये स्पेसिफिक है rare earths में. Cerium and promethium. Cerium is known for the most abundant rare earth element, and this promethium is a radioactive element. So now we'll see uses of this rare earth elements. So its uses in everywhere, every kind of electronic industries. Okay. So it owes to their unique luminescent. Okay, काफी चमकते हैं.
तो ये एक प्रॉपर्टी है उनकी ल्यूमिनेसेंट वाली. सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इनके पास. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, they find application in numerous industries including national defense, missiles, okay, rockets, and everywhere we use this rare earth elements. Computers, consumer electronics, communications, advanced transportation, healthcare, clean energy, space, environmental mitigation, and others. So these elements have various uses. Okay, and because as we can see that it is used in the most almost all of the electronic industries, TV, these mobiles, everywhere. Okay, these elements are used, and that is why definitely it has demand world over. Okay, but there is an unequal distribution of these rare earth elements in the world. We will see. So this is a worldwide distribution. So total amount of rare earth elements is about 120 million metric ton. Okay, so ये total basically world में जो total world में जो reserves हैं ये उसका amount लिखा हुआ है. Now we'll see country wise distribution. So the highest reserves of this rare earth elements is with China. China के पास सबसे ज़्यादा rare earth elements हैं, around 44 million metric ton. And then Brazil has the 22 million metric ton. Vietnam 22, Russia 12, India 6.9. So India के पास भी अच्छे खासे rare earth elements हैं. Australia 3.3, Greenland 1.5, USA 1.4, Tanzania, South Africa. Okay. These are the reserves. Okay. किस country में कितने reserves हैं? And this is the ranking based on the reserves. Now we'll see production. That which country is producing more? So China is the largest producer of rare earth elements. So it is producing the world's 90% of rare earth materials. Okay, so China is the topmost country which is producing the rare earth elements, and that is why, because there are many countries who are dependent on China for these rare earth elements. So in India, as we have seen that there are 6.9 million metric ton. And 2018 production, India's production is production was 1800 metric ton. Okay, and there is a one PSU, there is a one public undertaking which is created for the mining and production of the rare earth elements, and the name of that company, government company, is the Indian Rare Earth Limited, IREL. So this company is engaged in mining and production of beach sand minerals and rare earth compounds. Okay, the main minerals separated by IREL from the beach sands are ilmenite, rutile, leucoxene. Okay, leucoxene and sillimanite, garnet, zircon, and monazite. So these are the basically minerals from which we can get the rare earth elements. So IREL also produces uranium and thorium and rare earth salts. Okay, so this company is also involved in production of these kind of things: uranium, thorium, and rare earth salts. But despite having vast resources, India has not been able to utilize the same, because although we have good number of reserves for rare earth elements, but our production has not been increased in that much pace. So our production is very less as compared to reserves. Okay. Because by increasing production, India not only can cater its own need, its own demand, but can also export these rare earth elements to other countries. Okay, that is why there is a need to increase the production of rare earth elements in India. So IREL is a mini Ratna company, okay, based in Mumbai,
So in India, these rare earth elements also found in fact, most of the rare earth elements in India are found in the sand beaches. तो हमारे इंडिया में सैंड बीचेस के में काफी रेयर एलिमेंट्स मिलते हैं एंड उस बीचेस में ये मिनरल्स होते हैं, ये सैंड टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं और जिसमें बेसिकली रेयर एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड दीस मिनरल्स आर इल्मेनाइट, सिलिमनाइट, गार्नेट, जिरकॉन, मोनाजाइट एंड रूटाइल। इनफैक्ट मोनाजाइट को हम लोगों ने पढ़ा भी था। कब पढ़ा था मोनाजाइट को हम लोगों ने? यस, व्हेन वी रेड मोनाजाइट। So in geography we have discussed about uranium and thorium. तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि this monazite is a sand kind of sand where we can find the thorium. Okay, और इंडिया में अच्छा खासा थोरियम है हमारे पास। इनफैक्ट थोरियम में हम लार्जेस्ट रिजर्व्स है हमारे पास वर्ल्ड के। At that time we have seen that thorium can be extracted from the monazite sand. Okay, so monazite basically is a sand mineral where we can find thorium. Collectively called weak sand minerals. Okay, सबको collectively हम लोग weak sand minerals बोल सकते हैं। इसमें से हम rare earth elements निकालते हैं और earth elements के अलावा हम लोग यूरेनियम और थोरियम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से एंड डेफिनेटली rare earth salts भी निकाल सकते हैं। So India has almost 35% of world's total beach sand mineral deposits. यदि बीच की जो सैंड होती है उसके डिपॉजिट्स मिनरल्स की बात करें तो उसमें फिर हम इंडिया में सबसे हाईएस्ट रिजर्व्स हैं बीच सैंड मिनरल्स की। ओके, and that is 35%. Okay, so monazite, this monazite mineral contains atomic minerals like uranium and thorium, and India majorly thorium hai. Okay, so this rare elements was also news because recently USA Army is planning to construct a rare earth processing facility to secure domestic supply of minerals that are used to make military weapons and electronics. This will be US Army's first commercial scale financial investment into rare earth production. So as I told you that China is dominating world over in production of the rare earth elements, and that is why USA want that we also need to increase our production, domestic production, and that is why US's Army making a first commercial scale financial investment in rare earth production because USA Army को rare earth elements मिल नहीं रहे हैं to increase their weaponry, okay, to increase their these weapons, okay, and that is why USA Army making its first commercial financial investment in the rare earth processing facility. Okay, so they are trying to construct a rare earth processing facility to cater their need. So this is it with this topic. So now we'll move to next topic, that is a Pinaka missile. I hope कि सब लोगों ने पिनाका मिसाइल के बारे में सुना होगा, मे भी देखा भी होगा आप लोगों ने टीवी वगैरह में। What is पिनाका मिसाइल? I hope कि आप लोगों ने सबने सुना होगा पिनाका के बारे में। इनफैक्ट जब भी ये रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे की बेसिकली जो परेड होती है, ओके, दिल्ली में, एट दैट टाइम इफ यू हैव सीन दैट परेड तो उसमें सारा ये वेपन्स दिखाते हैं इंडिया में कौन कौन सा डिफेंस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, तो वहाँ पर उसका एक तरह से एग्जीबिशन एक तरह से उस परेड में हम देखने को मिल सकता है। ओके, सो वहाँ पर पिनाका को भी दिखाया जाता है इन एवरी इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे परेड। ओके, जो टीवी में आती है। यस, Pinaka. Okay, so Pinaka is a very famous indigenously created, that means we have created by our own without any foreign help. So Pinaka is a multi-barrel rocket launcher system developed by the DRDO for the Indian Army. So DRDO जैसे कि ISRO एक research organization है for space, for satellites, for rockets, okay, to construct these kind of things, okay, for this astronomy, okay. Likewise, DRDO is a defense and research, in fact, research and development organization, R&D organization for the defense purposes. Okay, so this DRDO researched founded this Pinaka, which is right now used by the Indian Army,
एंड इट्स ए रॉकेट लॉन्चर, एंड आई होप रॉकेट लॉन्चर आप लोगों ने सुना होगा नाम के रॉकेट लॉन्चर। तो इसमें क्या होता है कि दिस पिनाका का जो फर्स्ट वर्जन था पिनाका MK1 मैक 1, इसकी जो रेंज थी ये 40 किलोमीटर थी, और पिनाका मैक सेकंड की रेंज 75 किलोमीटर है अभी जो रिसेंट इसका वर्जन है पिनाका मैक सेकंड। एंड जैसे कि हम लोगों ने ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में डिस्कस किया था व्हिच हैज ए पैराबोलिक पाथ, लाइकवाइज दिस पिनाका मिसाइल इज आल्सो लॉन्च्ड फ्रॉम लाइक ए मिसाइल। ओके, और ये ट्रक माउंटेड है, एक इंडिया का एक ट्रक है दैट इज ए टेट्रा ट्रक। ओके, ये बेसिकली आर्मी वाले यूज करते हैं इस तरह के ट्रक को, उसमें मिसाइल इंस्टॉल कर दी जाती है ट्रक्स में। सो दिस सिस्टम इज माउंटेड ऑन ए टेट्रा ट्रक फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब इस मिसाइल्स को इधर उधर लेके जाने के लिए हम लोग इस ट्रक का यूज करते हैं, टेट्रा ट्रक। तो ये आप लोग रिपब्लिक डे के टाइम देखा होगा, तो उस ट्रक में ये मिसाइल लेके आते हैं और इसको ट्रक वो लेके जाता है मिसाइल्स को। ओके, मिसाइल को कैरी करने के लिए बेसिकली इस रॉकेट लॉन्चर को यूज करने के लिए हम बेसिकली इस ट्रक का यूज करते हैं, ट्रक। इसको मैं आप लोग थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में। सो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो आप लोग। ब्लास्टिक मिसाइल कुछ इस तरह से होती है कि दो तरह की मिसाइल होती है, एक ब्लास्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है। आज हम लोग ब्रह्मोस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ब्रह्मोस इज ए क्रूज मिसाइल। ओके, तो पहले ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में देखो आप लोग। तो कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस इज सरफेस, यहाँ से फिर कुछ इस तरह से हमने मिसाइल एक सेट करके मिसाइल एक, ठीक है। और इंडिया से फर्ज करो हम पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं मिसाइल। तो कुछ इस तरह से इसका पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ मिसाइल का। ओके, जैसे ये मिसाइल लॉन्च की इस तरह से पाथ लेगी ये मिसाइल, और ये इस तरह से फिर ये पाकिस्तान में जाके गिर जाएगी। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल। तो इस तरह की मिसाइल को बेसिकली हम लोग ब्लास्टिक मिसाइल बोलते हैं। ओके, सेकंड मिसाइल जो मैंने आपको बोला, सेकंड मिसाइल इज ए क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में क्या होता है बेसिकली, क्रूज मिसाइल स्टार्टिंग इसकी कुछ वैसी होती है, इसको इस तरह से इंक्लिनेशन में छोड़ा जाता है। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ देने की कोशिश करती है। ओके, उसके बाद इसमें दो बूस्टर लगे होते हैं, दो इसमें स्टेजेस होती हैं इस रॉकेट की, इस मिसाइल की। उसके बाद क्या होता है कि जब एक स्टेज निकल जाती है उसके बाद इसकी शेप ऐसे हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है इसकी। ओके, एंड इसके बाद जब ये डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाला होता है, जैसे इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर गया, ये पाकिस्तान के वहां पर आ गए जहाँ पर इसको मिसाइल को छोड़ना है, तो फिर ये सडनली वैसे वाली ऐसी शेप ले लेती है। या फिर ये ऐसा भी करता है, इनफैक्ट ऐसा भी होता है इस मिसाइल में कि इस तरह की शेप ले ही ना। ओके, डायरेक्ट ऐसे स्ट्राइक करके, मतलब किसी बिल्डिंग पे हमने दागना है, तो ये ऐसे किया कि इस बार सीधी होगी, और यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है। ओके, दिस इज अ बिल्डिंग। तो डायरेक्ट इस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे करके और ऐसे चली जाएगी। सो एकदम स्ट्रेट हो जाती है ये मिसाइल। इस तरह की मिसाइल को बोलते हैं क्रूज मिसाइल। मिसाइल को बोलते हैं क्रूज मिसाइल। इसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। Yes, everybody has drawn it.
Can I move ahead? Yes, sir. Okay. So ये पिनाका मिसाइल जो है ये एक ब्लास्टिंग मिसाइल की तरह ही है. ओके. एंड दिस सिस्टम इज माउंटेड ऑन ए टेट्रा ट्रक फॉर मोबिलिटी. इसका पिक्चर्स देख सकते हो आप लोग टेट्रा ट्रक की नेट पे. So this tetra mounted Pinaka missiles can fire 12 rockets in 44 seconds. So that much is the capacity or that much is the capability of this Pinaka missile. एक तरह का ये रॉकेट लॉन्चर है. रॉकेट लॉन्चर के बारे में आपको पता है. रॉकेट लॉन्चर हाथ से भी इसको बेसिकली छोड़ा जा सकता है. रॉकेट लॉन्चर को मैं भी अपनी बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा. ओके. जैसे हाथ से एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ते हैं और वो फिर वो क्या है हीट रिकॉग्निशन करता है. जहां पर उसको हीट दिखती है, मान लो कोई टैंक वगैरह वहां पर उसको हीट दिखती है तो उसको वहां पर बेसिकली अपने आप को उसको बेसिकली उसके ऊपर वो जाके ब्लास्ट हो जाता है. ओके. यदि मान लो वो टारगेट हिल भी गया, मान लो फर्ज करो वो टारगेट थोड़ा सा हिल गया. ओके. मान लो जो मोबिलिटी और मूविंग टारगेट है तो फिर भी वो जो रॉकेट लॉन्चर है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. ओके. बिकॉज उसमें जो सेंसर लगे होते हैं जिससे कि वो फिर वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि काम पर हीट है तो फिर वहां जाके वो बेसिकली ब्लास्ट कर सकता है. ओके. सो ऑटोमेटिकली अपना पाथ एडजस्ट करते हैं. इस तरह के जो रॉकेट्स होते हैं. सो इट कैन फायर 12 रॉकेट्स इन 44 seconds. The Pinaka Mach second version rocket is modified as a missile by integrating it with the navigation. Okay. So वही नेविगेशन का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स लगे जैसे जीपीएस लगा हुआ है इसके अंदर एक तरह से. तो ये पूरा कोऑर्डिनेट से ऐसे करके उसको बेसिकली टारगेट सेट कर दिया जाता है एंड देन इट कैन मैन्यूवर जैसे घूम सकता है. ओके. हवा में. और it can basically navigate using the getting this GPS signal. Obviously our own GPS and USA तो obviously हमें provide भी करेंगे. Yes. Sir, is there any difference between rocket and missile? हाँ, रॉकेट बेसिकली मिसाइल का तो साइज बहुत बड़ा होता है और रॉकेट क्या होता है उसको कैरी करना या रॉकेट लॉन्चर जो बात कर रहा हूँ मैं रॉकेट लॉन्चर ये बहुत छोटे साइज का होता है. ये तो ऐसा कि जैसे मान लो एक छोटी मोटी एक आर्मी से बेसिकली हम कर रहे हैं तो या फिर हमें कुछ पर्टिकुलर जैसे कि मान लो कारगिल की वॉर हुई थी. ओके. उस टाइम हम लोग पिनाका यूज किए थे इनफैक्ट. ओके. एंड उस टाइम हमारे पास ब्रह्मोस नहीं थी. हर मिसाइल का यूज अलग अलग होता है. ओके. जैसे जो मिसाइल होती है वो बल्क में तो बहुत बड़ा एरिया को तबाह करने के लिए होता है. लेकिन जो पिनाका होता है उसका जो पिनाका एक तरह से रॉकेट लॉन्चर है और ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने के लिए छोटे मोटे एक्सप्लोजन करने के लिए छोटा सा एक इसको एक्सप्लोजन करने के लिए. और जो मिसाइल होती है उसको कैरी करना भी मुश्किल होता है. ओके. एंड इट्स फॉर टू मेक ए बिग एक्सप्लोजन. जैसे कि पिनाका है ये सिर्फ कन्वेंशनल वॉर वेपन है. ओके. ठीक है. इसमें छोटा मोटा थोड़ा सा बारूद होता है लेकिन जो मिसाइल्स होती हैं उसमें पिनाका में आपको न्यूक्लियर हेड आप इसमें नहीं डाल सकते. न्यूक्लियर पेलोड नहीं डाल सकते आप लोग पिनाका में. और जो मिसाइल्स होती हैं मिसाइल्स कन्वेंशनल भी होती है और न्यूक्लियर भी होती है. ओके. सो इनका यूज अलग अलग है. सो पिनाका स्मॉल वर्क करने के लिए छोटा मोटा की ब्लास्ट करने के लिए बट दिस मिसाइल्स फॉर द बिग एक्सप्लोजन कैरी करना भी मुश्किल होता है. सो ये काफी हैंडी होता है. जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं काफी हैंडी होते हैं. इनफैक्ट हाथ से लोग रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करने वाले भी बेसिकली बनते हैं रॉकेट लॉन्चर. ओके. सो इट्स ए रॉकेट इज मॉडिफाइड एज ए मिसाइल. इसको जैसे ये हाथ से करने वाले इसको पहले जो छोटे से रॉकेट लॉन्चर होते हैं इसको हाथ से लॉन्च करते हैं उसको बेसिकली रॉकेट लॉन्चर बोलते थे. ओके. तो लेकिन बाद में क्या हुआ इसके लेकिन हमने इसको इंडिया ने मॉडिफाई किया इस रॉकेट लॉन्चर को. इसने हमने मिसाइल का रूप दे दिया. हमने ट्रक के माउंटेड कर दिया इसको और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दिया. तो एक तरह से ये मिसाइल कम रॉकेट लॉन्चर आप इसका ऐसा बोल सकते हैं. तो ये मिसाइल कम रॉकेट लॉन्चर है जो पिनाका मैक सेकंड. So by integrated with the navigation, control and guidance system to improve and accuracy and enhance the range. और इसकी रेंज भी बढ़ा दी हम लोगों ने. रॉकेट लॉन्चर की रेंज कम होती है बट दिस पिनाका has the range of 40 and recently 70 जैसे मैंने बताया कि वैसी रेंज हो गई है अभी इसकी. So this navigation system of this missile is also added by the India Regional Navigation Satellite System IRNSS. तो पहले हम लोग क्या करते थे पहले हम डिफेंस पर्पसेस के लिए रशिया की हेल्प ले लेते थे. उनका ग्लोनास यूज कर लेते थे. ओके. एंड बट अभी हमारे पास खुद की नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है. हमारा खुद का जीपीएस है इन द फॉर्म ऑफ IRNSS. तो जितने भी हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है या जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो हमारे बेसिकली फाइटर प्लेन्स हैं वो IRNSS का यूज करते हैं. ओके. सो
पिनाका सो सर्विस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, तो पिनाका कारगिल वॉर में यूज किया गया था, एंड वेयर इट वाज सक्सेसफुल in neutralizing enemy positions on the mountain tops. It has been since inducted into the Indian Army in large numbers. Okay. तो जैसे ही हमें कारगिल वॉर में काफी सक्सेस मिली थी, पिनाका से हमें काफी हेल्प मिली थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पिनाका को हमारी इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लिया. ओके, देन वी हैव इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन आल्सो. हमें लगा कि पिनाका का काफी यूजफुल है छोटे मोटे वॉर करने के लिए. कारगिल लिमिटेड एक वॉर थी, उस तरह की वॉर को यूज करने के लिए पिनाका काफी हैंडी था और काफी इजीली यूज हुआ, एंड दैट इज व्हाई इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पिनाका. एंड नॉट ओनली वी इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पिनाका, वी आल्सो रिफॉर्म्ड इट बाय इंक्रीजिंग इट्स रेंज. हमने इसकी रेंज भी बढ़ा दी. ओके, लेकिन उस टाइम हमारे पास ब्रह्मोस नहीं था. यदि हमारे पास उस टाइम ब्रह्मोस होता सो डेफिनेटली इट कुड बी मोर यूजफुल, बिकॉज उस टाइम हमें क्रूज मिसाइल चाहिए थी, और उस टाइम हमारे पास इस तरह क्रूज मिसाइल नहीं थी, एंड डेफिनेटली यदि हमारे पास क्रूज मिसाइल होता इट कुड बी मोर यूजफुल. But now, yes, now we have BrahMos. Obviously, if there is any other incident like Kargil, so definitely Pakistan will see its consequence. Okay. So Pinaka Mach 2 was successfully tested in January 2013 and in December 2013. So this Pinaka का जो second version है ये 2013 में, और ये इनफैक्ट 1980 से बन रहा है. Pinaka ये लेट 1980 से स्टार्ट हुआ था पिनाका का कंस्ट्रक्शन, पिनाका की टेस्टिंग. ओके, अभी इसका जो सेकंड वर्जन है ये 2013 में स्टार्ट हुआ था. 2016, 2017, 18 में भी इसका टेस्टिंग हुई थी, एंड रिसेंटली दिसंबर 2019 में भी इसकी टेस्टिंग हुई है. पर खास बात क्या है कि इस टाइम हमने रेंज एक तरह से इसकी जो रेंज है हमने और बढ़ाई है इस बार. ओके, जो दिसंबर 2019 में जो बेसिकली हमने टेस्ट किया है पिनाका का, around 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर. So this is the basically specific thing. Okay, जिसके कारण ये पिनाका इस बार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसकी रेंज इंक्रीज की है, हमने इसको वर्जन को एक्सटेंड किया है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेंज वर्जन अप टू 90 किलोमीटर. एंड वी हैव मेड 2 टेस्ट. दिसंबर महीने में हमने 2 रॉकेट छोड़ के देखे थे हमारी इंडियन आर्मी में, एंड दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. So the consecutive successful trials prove its efficacy and high precision capabilities. जैसे हम PSLV को बोलते हैं, PSLV in space proved its this capacity, efficiency, precision, accuracy. Likewise, Pinaka by multiple tests. In fact, we have used in warfare also in the Kargil, and that is why this Pinaka proved to be a very successful mission of India. Okay, it has become one of the most reliable and effective weapon system of Indian Army. Now we'll read about BrahMos missile. Okay. So जैसे कि जो पिनाका हमने पढ़ा था, पिनाका वाज a rocket launcher from missile. Okay. And Pinaka was a ballistic missile. Likewise, BrahMos is a cruise missile. Okay, BrahMos is not a ballistic missile; it's a cruise missile. And a specific thing is, आप लोगों ने ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा BrahMos मिसाइल के बारे में पहले, so it's a joint venture of India and Russia. दोनों कंट्रीज ने मिलकर इस BrahMos मिसाइल को बनाया है, इंडिया ने और रशिया ने. ओके, सो इट्स a मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. हम बात करेंगे रामजेट क्या है. ओके, सो इट्स a मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ओके, तो ये सुपरसोनिक है, क्रूज मिसाइल है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए क्रूज मिसाइल, मीडियम रेंज. अभी हम बात करेंगे, अराउंड 300 किलोमीटर की रेंज है, 290 किलोमीटर. एंड इट्स वर्क ऑन दी रामजेट टेक्नोलॉजी. ये रामजेट टेक्नोलॉजी क्या है और सुपरसोनिक क्या है, एक थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा. सो इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड. ये कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है. इसको आर्मी भी यूज कर सकती है, आर्मी इसको एज ए मिसाइल यूज करेगी, एज ए मिसाइल लॉन्च करेगी इसको. इट कैन बी यूज्ड बाय नेवी, इट कैन बी ब्लास्टेड फ्रॉम द शिप्स. ओके, शिप से इसको छोड़ा जा सकता है. और इट कैन बी दिस लॉन्च्ड फ्रॉम द सबमरीन्स. और सबमरीन्स मतलब पानी के अंदर भी इसको लॉन्च किया जा सकता है. एंड not only land and navy, it can be used by the Indian Air Force also. जो हमारे जो फाइटर प्लेन्स है वो भी इसको
अपने फाइटर प्लेन्स में इसको बेसिकली इंस्टॉल करके, प्लेन्स में इंस्टॉल करके इसको फायर कर सकते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर, दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर, एंड इनफैक्ट नॉट ओनली दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर, बेसिकली कहीं पर भी इसको लॉन्च किया जा सकता है. सो दैट इज द स्पेसिफिक थिंग दैट दिस ब्रह्मोस मिसाइल कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन. और ये ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत में मिसाइल ऐसी बनी थी कि इसको बेसिकली लैंड से और ऐसे सब से लॉन्च किया सकती थी. इसका इवोल्यूशन हुआ है. ओके, सबसे पहले जो हमने लैंड के लिए बनाया था, फिर इसको नेवी में यूज करने लगे, एंड मोस्ट रिसेंटली इसको एयरक्राफ्ट में इंडक्ट किया गया. एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिसेंटली भी इसको एयरक्राफ्ट के लिए भी इंडक्ट कर दिया. 2017 में इसको इंडक्ट किया गया था एयरक्राफ्ट के लिए. ओके, सो इट इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड. And that's why I said that India is the most reliable partner of Russia for its defense equipments. रशिया ने यदि ज्वाइंट वेंचर करना है तो उसकी पहली पसंद इंडिया इसलिए होती है बिकॉज वी हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द ज्वाइंट वेंचर. एंड इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्रह्मोस मिसाइल. ओके, एंड इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट मिसाइल इन ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैटेगरी. इस कैटेगरी की ये बेस्ट मिसाइल है. It's the fastest supersonic cruise missile in the world. It is a joint venture between the Russia's NPO, जैसे हमारा DRDO है, Research and Development Organization, उसी तरह से रशिया का NPO, Machino, Stroinia, NPOM, okay, is a Research and Development Organization of Russia. So इन दोनों के पीछे पैक्ट हुआ था, and there is a joint venture. And we have created BrahMos. लेकिन इस पैक्ट में ये साइन किया था कि जो हमारे एनिमीज हैं उसको रशिया ब्रह्मोस नहीं देगा, और जो रशिया के एनिमीज है उसको इंडिया ब्रह्मोस नहीं देगा. ओके, सो नेम ब्रह्मोस वाज टेकन फ्रॉम टू रिवर्स, ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया एंड मोस्कवा ऑफ रशिया. So this BrahMos name was taken from two rivers because a joint venture, so Brahmaputra and Moskva of Russia. अभी हम बात करते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है. क्रूज मिसाइल का मतलब थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने. ओके, क्रूज मिसाइल का मतलब क्या होता है when we were reading about the Pinaka. But now we'll see what are the supersonic missiles. Okay. First of all, to know about the supersonic missile, we need to know about the speed of sound. So speed of sound in dry air at 20 degrees Celsius temperature is this 343 meter per second. So generally the speed of sound ली जाती है वो इतनी ली जाती है 343 meter per second in air, obviously, because sound speeds vary with the change of medium. यदि मेटल में स्पीड ज्यादा होगी साउंड की या एयर में ज्यादा होगी? यस, मेटल्स में ज्यादा होगी ऑब्वियसली. ओके, ये हम लोग जब अर्थक्वेक वेव्स पढ़े तब मैंने आपको बताया था ये सब चीजें. ओके, कि जैसे जैसे मटेरियल सॉलिड होता जाता है तो इस तरह से स्पीड फास्ट होती जाती है साउंड की. ओके, सो दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक. जब हम बोलते हैं स्पीड्स, जैसे जो मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल्स होती हैं, उनकी स्पीड हम लोग मैक में बेसिकली मेजर करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक. मैक इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन मीडियम divided by the speed of sound in that medium. Okay, जैसे हम एयर की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने मतलब बताना है कि कितने मैक है स्पीड सब्जेक्ट की. तो हम देखेंगे उसकी स्पीड टेस्ट करते हैं रिलेटिव टू साउंड, कि उसी मीडियम में साउंड कितना बेसिकली उसकी स्पीड, साउंड की स्पीड कितनी होगी. तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कौन क्या है, मिसाइल है. तो एक तरह से स्पीड ऑफ मिसाइल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड. सिंपल है. मैक मींस स्पीड ऑफ दैट मिसाइल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड. तो इसके इधर ले जाऊं मैं, तो इट्स ए वर्ड की स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन बता रहा हूं. जैसे कि मान लो किसी मिसाइल की स्पीड डबल है साउंड की स्पीड से, साउंड की स्पीड से डबल है किसी मिसाइल की स्पीड, तो उसकी कितनी हो जाएगी स्पीड? 2 मैक. उसको बोलेंगे 2 मैक है. इसका मतलब 2 मैक बोलते ही हम समझ जाना चाहिए. मैक का मतलब यहाँ पर है कि साउंड की स्पीड. ओके, तो 2 मैक का मतलब क्या कि डबल है, जो मिसाइल की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से डबल है. तो वो सारी मिसाइल जिनकी स्पीड साउंड से ज्यादा है, इस स्पीड से ज्यादा है, वो सारी मिसाइल जिनकी स्पीड साउंड से ज्यादा है, उन सब मिसाइल्स को क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल. और वो क्रूज मिसाइल जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है,
उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल्स। ओके, सो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इस कैटेगरी की है, सुपरसोनिक मिसाइल्स है। व्हाई? बिकॉज द स्पीड ऑफ ब्रह्मोस इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग। ब्रह्मोस मिसाइल इज ए 2 स्टेज मिसाइल। ये 2 स्टेज की एक मिसाइल है। ओके, जैसे हम लोग स्पेस पे रॉकेट पढ़ते थे, डिफरेंट स्टेजेस पढ़ते थे उसमें, लाइकवाइज ब्रह्मोस मिसाइल इज ए 2 स्टेज मिसाइल with a solid propellant booster engine as its first stage, which brings it to supersonic speed, then gets separated. तो मैंने जो आपको डायग्राम बनाया था व्हाइट बोर्ड पे, ओके, तो वहां पर क्या था बेसिकली, तो इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। जैसे हमने बताया कि सुपरसोनिक मिसाइल कुछ पहले इस तरह से इंक्लिनेशन लेती है, उसके बाद सीधी हो जाती है मिसाइल। तो ये जो इंक्लिनेशन लेती है इसको बेसिकली ये थ्रस्ट जो प्रोवाइड करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है, सुपरसोनिक से स्पीड प्रोवाइड करता है, वो सॉलिड इंजन है, तो फर्स्ट इंजन है। और जैसे ही इसको स्पीड मिल जाती है और इसको बेसिकली उसके रिक्वायर्ड हाइट पे, रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड पे पहुंच जाती है मिसाइल, तो ये स्टेज अलग हो जाती है, तो ये दूसरी स्टेज चालू हो जाती है उसके बाद। ओके, एंड देन जो मिसाइल है वो फिर स्ट्रेट जाएगी। ओके, तो जो मिसाइल है वो स्ट्रेट जाएगी। और जो सेकंड स्टेज है दैट इज ए लिक्विड रामजेट स्टेज, because it uses ramjet technology. Second stage of this missile is a liquid ramjet stage, which takes the missile closer to 3 Mach speed. तो ब्रह्मोस की स्पीड अराउंड कितनी है? 3 Mach। इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। इन क्रूज फेज, तो जो क्रूज फेज होता है जिसमें स्ट्रेट मूव करता है, ओके, तो इस क्रूज में इसकी स्पीड है बेसिकली अराउंड 3 Mach। Stealth technology and guidance system with advanced embedded software provides the missile with special features. Okay, तो उसमें स्टील्थ मोड है। स्टील्थ मोड मतलब इसको रेडार वगैरह इसको बेसिकली नहीं लोकेट कर पाती। एंड गाइडेंस सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें नेविगेशन यूज करते हैं हम लोग। ओके, एंड रेंज ऑफ दिस मिसाइल इज 290 किलोमीटर। यदि एग्जाम में ऐसा लिखा होता है कि अराउंड 300 किलोमीटर range of BrahMos, that statement will also write, लेकिन एग्जैक्ट नंबर है 290 किलोमीटर। दैट इज द रेंज ऑफ मिसाइल। रेंज ऑफ मिसाइल हम लोग समझते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको डायग्राम बनाया था। जो थोड़ा देर डायग्राम बनाया था ये वाला, तो इसमें ये जो कितना डिस्टेंस पे जाती है, कितना दूर जाती है मिसाइल, दैट इज ए रेंज ऑफ मिसाइल। ओके, कितना डिस्टेंस कवर करती है। जैसे कि क्रूज मिसाइल है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज ए रेंज ऑफ मिसाइल। दिस इज ए रेंज ऑफ मिसाइल। एंड ये जो है कितना ये हाइट तक जाएगी, ये कितनी हाइट तक जाएगी, इसको बोलते हैं बेसिकली एल्टीट्यूड। इस चीज को यहाँ पर बोला जाता है एल्टीट्यूड। इसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। ये मिसाइल का कितना एल्टीट्यूड है, एंड दिस इज कॉल्ड रेंज। ओके, ये जो एल्टीट्यूड है बेसिकली क्रूज मिसाइल के लिए फेमस होता है। यहाँ पर ब्लास्टिंग मिसाइल के लिए एल्टीट्यूड नहीं, रेंज ज्यादा यूज होती है, लेकिन यहाँ पर रेंज प्लस एल्टीट्यूड। ये कितना ऊपर जाके क्रूज लेता है, दैट इज व्हाई दिस एल्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। ओके, कितनी हाइट पे ये क्रूज लेता है। क्रूज मींस ऐसे सीधा आई मीन स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करना। दिस इज एल्टीट्यूड एंड दिस इज रेंज। So and apart from that it operates on fire and forget principle. Okay, it operates on fire and forget principle। इसका मतलब आप इसको फायर कर दो, छोड़ के भूल जाओ। ओके, इसमें जो सॉफ्टवेयर लगा है, इसमें जो सॉफ्टवेयर चिप्स हैं, इसमें जो नेविगेशन लगा है, इसमें जो अंदर सेंसर लगे हैं, वो अपना काम खुद से खुद कर लेंगे। ओके, आपने लोकेट कर लिया कि इस चीज को उड़ाना है, सब्जेक्ट को खत्म करना है, उसके बाद यदि वो ऑब्जेक्ट मान लो फट करो कि मिसाइल को देखते ही भागने लग जाता है। ओके, या गाड़ी है, वो गाड़ी फटाफट से भागने लग जाती है कि उस मिसाइल से बचने के लिए, तो मिसाइल उसका पीछा करेगी। ओके, ऑब्वियसली इसकी स्पीड बिकॉज साउंड की स्पीड से ज्यादा है, तो वो चीज ज्यादा भाग नहीं सकती।
ओके, थोड़ा सा कुछ मूवेबल भी है, हिल डुल भी रही है, तो भी उसको बेसिकली वो फायर कर देगी। ओके, सो इट वर्क्स ऑन बेसिकली फायर एंड फॉरगेट। इसको मैन्युअली मूव करने की जरूरत नहीं है आपको, मैन्युअली उसको ऐसे सेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑटोमेटिकली अपना पाथ ही खुद देती है विद द यूज ऑफ नेविगेशन एंड विद द यूज ऑफ सेंसर्स। So adopting varieties of lights on to way to the on the target. Okay, काफी सारे मोशंस लेती है टारगेट को बेसिकली हिट करने के लिए। ओके, सो क्रूजिंग एल्टीट्यूड जो ब्रह्मोस का है दैट इज अप टू 15 किलोमीटर, जो मैं आपको एल्टीट्यूड बता रहा था। ओके, दिस एल्टीट्यूड इज अराउंड 15 किलोमीटर फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। It carries conventional warhead. ये याद रखना है आप लोगों ने, यदि एग्जाम में स्टेटमेंट आती है that it can carry nuclear warhead, that statement will be wrong because BrahMos can carry only conventional warhead weighing 200 to 300 kgs. Okay, so it has a pinpoint accuracy. It has a highest accuracy in fact in all supersonic missile even with this high speed. जबकि स्पीड इतनी ज्यादा है इसकी, still it has pinpoint accuracy. And the air version of BrahMos successfully test fired in 2017. इसके जो air version of 2017 में आया है BrahMos का, and now it can work from all kind of platforms, whether it's a land, sea or air. Now let's see what is this Ramjet engine or Ramjet technology. इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। अभी देखो किसी भी, जैसे कि मान लो ये जो मिसाइल है, ये जो आगे जाएगी ऑब्वियसली इसको फ्रिक्शन कहां से लगेगा, एयर का फ्रिक्शन लगेगा। एयर इसको पुश करेगी, जैसे एयर को पुश करेगी तो ऑब्वियसली उतनी फोर्स एयर भी इसके ऊपर लगाएगी। ओके, तो इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कौन करेगा? एयर, जो इसके सामने से एयर आ रही है, जिसको इसलिए क्रॉस करके एयर को काट के जाना चाह रही है। ओके, सो इस प्रॉब्लम को कैसे निपटा जाए, इसकी स्पीड फिर कैसे बढ़ेगी यदि वो एयर का जो फ्रिक्शन है वो कम लगे। ओके, तब हम थोड़ा स्पीड इस बेसिकली मिसाइल की बढ़ा सकते हैं। सो जो रामजेट इंजन होता है दैट इज वर्क्स ऑन द एयर ब्रीदिंग जेट इंजन टेक्नोलॉजी। ओके, एयर ब्रीदिंग जेट इंजन टेक्नोलॉजी, and what is this we will see that uses the engine's forward motion to compress incoming air without an actual compressor or a centrifugal compressor. तो इसमें ये सब रामजेट टेक्नोलॉजी में इसमें कंप्रेसर लगाने नहीं पड़ते बेसिकली एयर को कंप्रेस करने के लिए, और जो इनकमिंग एयर है जो मिसाइल से टकरा रही है आके एयर, इसको बेसिकली वो खुद ब खुद उसमें बेसिकली फॉरवर्ड मोशन से ही कंप्रेस होने लग जाती है। एंड कंप्रेस होने का मतलब क्या, बेसिकली उसका रेजिस्टेंस कम कर देती है जो रामजेट इंजन है। इसको बेसिकली हम समझ पाएंगे एंड इट यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको हम समझ पाएंगे, एक डायग्राम आपको मैं आपको शो करता हूँ, उससे आप थोड़ा सा इसको आपको क्लैरिटी होगी व्हाट इज दिस रामजेट टेक्नोलॉजी। सो आई होप कि आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा सबको। ओके, सो ये एक मिसाइल दिखाई हुई है। ओके, ये एक मिसाइल है, अभी इसको ध्यान से समझना आप लोग कि ये इनकमिंग एयर है जो आपको ब्लू में दिख रही है, ये इनकमिंग एयर है। ओके, अब इस इनकमिंग एयर की जो इनलेट है, यहाँ से जो इनकमिंग एयर आती है जो सामने से, ये आगे मिसाइल मूव करेगी तो एयर इसमें बेसिकली इसके ऊपर बेसिकली स्ट्रक करेगी। तो जो इनकमिंग एयर है इसको हम लोग ये मिसाइल पास होने देगी। ओके, इनलेट से, उसके इनलेट से एयर बेसिकली पास होगी इसके अंदर से। यहाँ पर पास होने के बाद यहाँ पर इसको बेसिकली यहाँ पर इसको कंबशन चैम्बर है जहाँ पर इसको बेसिकली जलाया जाएगा एयर को। ओके, और गर्म होने के बाद ये एयर बेसिकली एयर की स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एयर की, एंड उसके बाद फिर ये एयर वापस से आउटलेट यहाँ से बाहर निकलेगी। दीज आर द एग्जॉस्ट। यहाँ से एयर देखो, सामने से जो एयर है मिसाइल के, ये अंदर आएगी और ये पीछे से बाहर जाएगी एयर। ओके, लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीड कम थी। ओके, यहाँ पर इसकी स्पीड कम थी, लेकिन गर्म होने के बाद ये एयर की स्पीड बढ़ जाती है। ओके, और जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ है कि मान लो कोई चीज कहने का मतलब है कि कोई चीज दूसरी के ऊपर फोर्स लगाती है तो वो दूसरी चीज भी उसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगी। ओके, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। बिकॉज ये जो एयर बाहर निकल रही है ये बहुत ज्यादा स्पीड से निकलेगी, तो ये जो मिसाइल है इसको भी उतनी फोर्स से ये पुश करेगी आगे तरफ। यदि इस डायरेक्शन में
एयर बहुत ज्यादा स्पीड से निकल रही है तो उस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस बेसिकली मिसाइल को भी उतना ज्यादा धक्का देगी। ओके, सो ये जो बाहर एयर निकल रही है उसके कारण इसकी स्पीड बढ़ती है। ओके, उसके कारण इसकी स्पीड सुपरसोनिक हो जाती है। सो दिस इज द बेसिकली रामजेट टेक्नोलॉजी। ओके, तो जो इनकमिंग एयर है उसी को हम लोग यूज करते हैं इन द कंबशन चैम्बर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ this missile. So this is a Ramjet technology. So it uses Newton's third law to speed up the missile. And what is the Newton's third law? That is the conservation of momentum. Both India and Russia are working to produce another version of BrahMos second. तो दोनों कंट्रीज एक नया वर्जन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं टू इंक्रीज इट्स स्पीड एज वेल एज रेंज, दोनों चीजें। ओके, और जो स्पीड को बढ़ाने की बात चल रही है दैट कैन बी गेट बाय द 2020। इसी साल बेसिकली आप लोगों को मिसाइल मिल सकती है विच हैज द स्पीड ऑफ मैक 7 to 8। और जो ब्रह्मोस 1 है उसकी जो स्पीड थी 3 मैक के अराउंड थी, दैट मींस 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। जो ये ब्रह्मोस सेकंड वर्जन आने वाला है उसकी स्पीड अराउंड इतनी हो जाएगी मैक 7 to 8। And in 2019 India upgraded the missile with a new range of 500 किलोमीटर। तो जो हमने 2019 में जो टेस्ट किया है इस मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल का, ऐसा बोलते हैं कि उसका मिसाइल का जो रेंज थी दैट इज अराउंड 500 किलोमीटर। बोथ इंडिया एंड रशिया आर वर्किंग टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू 600 किलोमीटर। तो अभी रेंज कितनी है? 290, ऑफिशियली 290 किलोमीटर रेंज है। ओके, ब्रह्मोस मिसाइल की, या अराउंड 300 किलोमीटर है। इसको हम दोनों इंडिया और रशिया मिलके इसकी रेंज बढ़ाने की बात कर रहे हैं अराउंड 600 किलोमीटर, तो अराउंड 600 किलोमीटर। एज इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन इन 2016। मैं दोबारा बोलता हूँ, हम लोग इसकी रेंज बढ़ा रहे हैं तो 600 किलोमीटर। मैं साथ में ये बोला कि बिकॉज इंडिया बिकेम ए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन इन 2016। अब मिसाइल की रेंज बढ़ाने से इसका क्या बेसिकली लिंक है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन जिसका मेंबर बना था इंडिया 2016 में, MTCR का, इंडिया 2016 मेंबर बन गया था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन MTCR। अदरवाइज आप लोगों को पता हो कि NPT, दिस NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एंड दिस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन, ये सब इंडिया के अगेंस्ट ही बने थे। सारी डिजाइन्स थी, इंटरनेशनल डिजाइन्स थी। ओके, कि इंडिया को बेसिकली वेपन्स ना मिले। एट दैट टाइम USA started this kind of regimes, but now India became a member of this missile technology control regime, and it has a link with this increasing the range of these missiles. So it's a very tricky question. यदि आज आप कहते हैं इस बार समझते हैं, अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर इसमें देखेंगे इन दोनों में लिंक क्या है। ओके, उसकी डेफिनेशन में इस रिजाइम के फीचर्स में बेसिकली इसका आंसर लिखा हुआ है, व्हाट इज इट्स लिंक विद द इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल। the answer समझ लो। So why it is important for India to be a member of MTCR, Missile Technology Control Regime? MTCR was established in April 1987 by the G7 countries. And who were the G7 countries? Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and US. It was created to curb the spread of unmanned delivery systems that could carry a payload of 500 kg for a distance of 300 km. Okay. So जो भी मिसाइल्स बेसिकली जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, ओके, या जो पेलोड कैरी करते हैं दैट इज मोर देन 500 kg, उसको कर्ब करने के लिए MTCR बनाया गया था। उसमें यह था कि कोई भी कंट्री जो MTCR का सिग्नेटरी नहीं है, MTCR का बेसिकली बनाने का रीजन ये था कि जो भी ये जो मिसाइल प्रोलिफरेशन है, कि जो मिसाइल को बनाना और इकट्ठा करके रखना अपनी कंट्री में, इसको रोक सके हम, सो दैट देयर कुड नॉट बी एनी अदर वर्ल्ड वॉर। ओके, और सबके पास बहुत से बड़े-बड़े वेपन ना आ जाए। तो उन्होंने बोला कि जो मिसाइल बड़ी-बड़ी मिसाइल हैं जिनमें जो बेसिकली 500 kg से ज्यादा
पेलोड डाला है, पेलोड मीन्स जो बारूद उसके अंदर डालते हैं हम लोग, तो वो जो बेसिकली उसका जो वेट है वो 500 kg से ज्यादा ना हो और उसकी डिस्टेंस 300 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। तो जो MTCR का सिग्नेटरी नहीं है जो कंट्री, ओके, तो उस कंट्री को, जिस कंट्री के पास ये सब मिसाइल्स हैं, मान लो फर्ज करो रशिया के पास ये मिसाइल्स हैं और इंडिया के पास नहीं है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो, so India cannot procure from that missile from Russia. Why? Because India is not a signatory of MTCR. ताकि इंडिया को ये मिसाइल ना मिल सके, इस तरह की मिसाइल ना मिल सके। तो एक तरह से जो भी इसके MTCR के मेंबर बन गए, ओके, तो वो किसी दूसरी कंट्री को ये मिसाइल्स नहीं देंगे। वो वाले मिसाइल जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है या जिनका वजन, जिनके अंदर जो पेलोड डाला है उसका वजन 500 kg से ज्यादा, ओके। सो इट इज नॉट ए ट्रीटी, एक बात याद रखना, इट्स नॉट ए ट्रीटी एंड इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग। तो ये स्टेटमेंट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है MTCR के ऊपर, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। सो दिस MTCR इज नॉट ए ट्रीटी and does not impose any legally binding obligations on partners or members, obligations or on partners or member। तो किसी तरह का भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगता जो भी MTCR ट्रीटी साइन करते हैं। Rather, it is an informal political understanding among states that seeks to limit the proliferation of missiles and missile technology। तो जो मेंबर्स पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं है इस तरह की, तो उसको ना मिले, इसके लिए MTCR बनाया गया। राइट नाउ MTCR has 35 members including India and Russia। MTCR में 35 मेंबर्स हैं अभी, और इंडिया भी इसका मेंबर है, रशिया भी इसका मेंबर है, एंड चाइना एंड पाकिस्तान आर नॉट द मेंबर्स ऑफ MTCR। बिकॉज़ एग्जाम में इस तरह स्टेटमेंट आ सकती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया दैट चाइना एंड पाकिस्तान आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दिस MTCR। अब इंडिया को 35 इसमें MTCR का मेंबर बनने का ये फायदा होगा बिकॉज इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल देखो पहले 290 किलोमीटर की रेंज थी, ओके, और अभी देखो ये इसकी रेंज 300 किलोमीटर से बढ़ा रहे हैं हम लोग, ओके, एंड दैट इज व्हाई इसका प्रोलिफरेशन करना एंड इनफैक्ट इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इंडिया के लिए इजी हो जाएगा, ओके, टू मेंबर कंट्रीज, एंड दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी ए मेंबर ऑफ MTCR। Okay. So by making MTCR member, India can develop missile range from more than 500 km with Russia or more than 300 km with Russia. And not only they can jointly make this kind of missiles, but they can also, because ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का इशू था यहाँ पर, ये देखो ये रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे थे, 300 km से ज्यादा रेंज की मिसाइल बना रहे थे, देन रशिया MTCR का मेंबर है, सो रशिया के ऊपर एक तरह से इनफॉर्मल एक प्रेशर पड़ रहा था, बिकॉज कोई फॉर्मल तो लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, रशिया वैसे तो कर सकता था, बट यस एक पॉलिटिकल एक प्रेशर था कि आप एक ऐसी कंट्री के साथ मिलकर 300 किलोमीटर की रेंज के साथ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो जो कि बेसिकली MTCR का मेंबर नहीं है। बट नाउ बिकॉज इंडिया इज ए मेंबर ऑफ MTCR, दैट इज व्हाई इंडिया एंड रशिया कैन जॉइंटली मेक द मिसाइल्स having range more than 300 kilometers. So that is a beautiful link with the MTCR and the this BrahMos, the second version of the BrahMos missile, so which can be asked in prelim as well as mains exam. Okay, so I hope ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आज, ब्रह्मोस और ये मिसाइल सिस्टम, व्हाट इज क्रूज मिसाइल, व्हाट इज ब्लास्टिक मिसाइल, और कौन कौन सी ब्लास्टिक मिसाइल है जो इंडिया यूज करता है, एनीबॉडी? ये तो रॉकेट लॉन्चर था पिनाका, तो पिनाका इज मोस्ट मिसाइल, इससे मिसाइल कम रॉकेट लॉन्च। हमारी फ्लैगशिप मिसाइल्स कौन सी हैं? ब्लास्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है, ये सब मिसाइल्स। यस, नो आइडिया? सो आई थिंक फिर तो आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी, ओके, जिसमें सब मिसाइल्स पर आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे कि पृथ्वी मिसाइल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पृथ्वी मिसाइल, और उसके बाद अग्नि मिसाइल आया, ओके, अग्नि 5 का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसको सूर्य भी बोलते थे, विद द रेंज ऑफ 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज बेसिकली हमने प्रोड्यूस की थी इस मिसाइल से, एंड इनफैक्ट 10,000 किलोमीटर की मिसाइल भी बना रहे हैं हम लोग, अग्नि 5 के बाद। So these all missiles are blasting missiles. So now we'll move to next topic, that is a National Broadband Mission, NBM. And what is this mission? We will see. And this is a new mission which came only in December 2019. That is why it's important for this exam, because it's a new mission. Okay, National Broadband Mission.
It is launched. It has been launched in December 2019 only, and that is why it is important. The government announced NBM, National Broadband Mission, to provide affordable and universal access of broadband for all. Okay. So this NBM is announced to provide the universal access of broadband for all. If I'm saying for all, that means for rural areas also. Okay. So the main objective of the NBM, National Broadband Mission, is to provide broadband access to all villages by 2022. एक तो पहले ये याद रख लेना आप लोग that we are going to provide this broadband access to all villages around. There are this जो भारत नेट है उसमें 2.5 लाख विलेज का हमारा टारगेट था. ओके, तो इन सारे के सारे विलेजेस को या उसके जो और भी कोई विलेजेस हैं तो उनको सबको 2022 तक हम लोग को ब्रॉडबैंड फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. सो द एम्बिशियस प्रोजेक्ट will involve down around 30 lakh kilometer route optical fiber cable, increase tower density. तो इतनी किलोमीटर डिस्टेंस की बेसिकली हमें ऑप्टिकल फाइबर डालनी, केबल डालनी. ओके, and we want to increase our tower density also from 0.42 to 1 per thousand of population by 2024. और लेकिन यहाँ पर जो टावर का बेसिकली और जो डिस्टेंस का बेसिकली जो टारगेट रखा गया है, ओके, जो ऑप्टिकल फाइबर डालनी है, and this tower density that is by 2024, and significantly improve quality of service for mobile and internet. The mission envisages rupees 7 lakh crore investment in next 3 to 4 years. This thing you need to remember. So this mission will provide internet connectivity to 1 lakh villages, which will push our economy to $5 trillion milestone. Because our Modi government has made a target to achieve a $5 trillion economy by 2025, if you remember. इसके ऊपर हम discussion भी होता हमारा. Okay, what are the loopholes in this particular target? इसके ऊपर हमारा discussion भी होगा. Or whether we are going to achieve this target or not, that also we have discussed. Okay, so it will also help. This internet connectivity to all these villages will also help to increase our milestone. This mission is part of National Digital Communication Policy 2018. So in 2018, this policy came, that is National Digital Communication Policy. And this National Broadband Mission is a part of this policy only. And what is this policy, we will see. Because remember one thing, that in prelim exam, UPSC prelim exam, questions also come for 2 or 3 years back current affair. तो 2018 भी पॉलिसी यदि कोई आई थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल. ओके, इट्स नॉट दैट कि ये 2018 के पॉलिसी आई थी उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा. इनफैक्ट आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. देयर आर 4 or 5 क्वेश्चंस, वी आर 2 or 3 बैक्स करंट अफेयर. 2 साल पुराने करंट अफेयर से क्वेश्चन भी आ रहे हैं. सो रिमेंबर दैट दिस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन इज द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी ओनली. ओके, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए मिशन लॉन्च किया है. दैट इज व्हाई we will read about this policy, National Digital Communication Policy. So it is India's a transition to a digital empowered economy and society. So जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, इसका मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन है वो बढ़े पहले से. तो ये बेसिकली इस पॉलिसी से हम लोग बेसिकली करना चाह रहे हैं. सो इंडिया's ट्रांजिशन टू डिजिटल एम्पावर्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड ब्रॉडबैंड फॉर ऑल. तो ये जो ये इसमें ये फीचर था ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, इसीलिए हमने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन स्टार्ट किया है ताकि सबको ब्रॉडबैंड मिले जो हमारी इकोनॉमी वो डिजिटल इकोनॉमी बने. ओके, वी आल्सो वांट टू क्रिएट 4 million additional jobs in the digital communication sector. Okay, we also want to create 4 million additional jobs in the digital communication sector. जितनी जॉब हम प्रोवाइड करना चाहते हैं using this policy, and also enhancing the contribution of the digital communication sector to 8% of India's GDP from 6% in 2017. So we also want to increase the contribution of the digital communication sector, including mobile sector, including internet services. तो इसका जो GDP में शेयर होना चाहिए, हम चाहते हैं कि इसका GDP में जो शेयर होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्टर का
that should be 8%. And the existing share of this kind of this sector is 6% in 2017. Okay. And also we want to propel India to the top 50 nations in the ICT Development Index of ITU. इसको basically ITU launch करता है. ICT Development Index को this is Information Communication Technology Development Index. Okay. And इसमें इंडिया की रैंक अभी 2017 में 134 थी और इंडिया चाहता है कि हमारी रैंक 50 के अंदर आ जाए. Okay. We should be top and we should be under this top 50 nations in this ICT Development Index. तो आप लोगों को होमवर्क नोट कर लो आप लोग. ये ICT Development Index आपको बेसिकली पढ़ना है. ओके. ICT Development Index. तो ये कौन पब्लिश करता है, क्या इसके इंडिकेटर्स है और इंडिया इसमें रिसेंटली अभी कौन सी इंडेक्स रिलीज की गई है और इंडिया की इसमें रैंक क्या थी एक्सेट्रा. ओके. सो ये पढ़ के आना आप लोग ICT Development Index. And apart from that, another objective is that ensuring digital sovereignty. ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है? What is the meaning of ensuring digital sovereignty? Yes. Anybody can tell what is digital sovereignty with examples? Examples मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझा सके, बता सके. Yes, anything, whatever you want, whatever you know. Sovereignty का मतलब क्या होता है? Sovereignty is freedom from interference in internal and external matters of a country. What could be digital sovereignty? In which context we can say? So we have control over the data over our citizen, and no other country is accessing it. Right. ये भी हो सकता है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, जो भी हम इंटरनेट पे जो वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं, हम लोग मान लो ये कहीं एक्सेस कर लिया, ओके, या कुछ डाउनलोड कर लिया या कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड कर लिए, तो ये बेसिकली जो भी डेटा इंटरनेट पे डालते हैं ये जाता कहाँ पर है? ऑब्वियसली एयर पे तो जाकर सेव होता है, कहीं पर जाकर सेव होता है जिसको हम एक्सेस करते हैं, वेदर वी आर डाउनलोडिंग द म्यूजिक, वेदर डाउनलोडिंग मूवीज, हम यूट्यूब पे तुरंत से देख लेते हैं वीडियोस वगैरह. ऑब्वियसली ये कहाँ पर डेटा सेव होता है? इस डेटा को सेव करने के लिए बहुत बड़े-बड़े डेटा सर्वर रूम बनाए जाते हैं, तो जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी हार्ड डिस्क रखी जाती है. डेटा सर्वर रूम बनाए तो उसमें बहुत बड़ी हार्ड डिस्क रखी जाती है. उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल करना पड़ता है, इनफैक्ट वहाँ पर एसी वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि, बिकॉज वो काफी उसमें लगातार चलता रहता है, फ्लोट चलते रहते हैं डेटा सर्वर्स, तो काफी हीट हो जाते हैं, तो उनको इसलिए कंट्रोल करने के लिए उनको टेम्परेचर भी डाउन रखना पड़ता है उस तरह के सर्वर रूम्स. तो जितने भी जो डेटा सर्वर रूम्स है ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में, ओके, तो हमें क्या चाहिए कि हम हमारी कंट्री में भी ऐसे डेटा सर्वर रूम बनाएं, ताकि और कुछ ऐसे डेटा सर्वर रूम बनाएं जिसको बेसिकली सिर्फ हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए या स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए यूज करें, या गवर्नमेंट ही उसको यूज कर रही है डेटा सर्वर, ओके, ताकि हमको डिपेंडेंट ना रहना पड़े दूसरी कंट्रीज डेटा सर्वर के ऊपर. या तो ये डेटा सर्वर है वो यूएसए में मिलेंगे आप लोगों को या कुछ और डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेंगे, बट नॉट इन इंडिया. ओके. एंड दैट इज व्हाई एक तो ये हो गया किसी डेटा सर्वर बनाया जाए हमारे कंट्रीज में. उसके अलावा आप ये समझ सकते हैं जैसे कि मान लो एथिकल हैकिंग नाम की चीज होती है, दैट जो गवर्नमेंट के पास जो हैकर्स होते हैं जो बेसिकली सिर्फ ये कंट्रोल करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को या जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उसको कोई हैक ना करे, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. ओके. गवर्नमेंट को बेसिकली किसी से बात भी करनी है, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. ओके. कोई भी कम्युनिकेशन है या कोई भी डेटा है हमारा वो सारा अवेलेबल रहता है, ओके, पब्लिकली. नॉट ओनली पब्लिकली, जो इनफैक्ट इंट्रा जो कम्युनिकेशन होता है वो भी इसमें भी इंटरनेट का यूज होता है. दैट इज व्हाई इट्स वेरी रिस्की nowadays. उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द रशियन एथिकल हैकिंग कंपनीज. ओके. तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है. आई थिंक Kaspersky is a company which is helping in the Indian government in ethical hacking. Okay. So why not we create hackers in our own country, ethical hackers in our own country. तो ये सारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम या जो इसके अलावा आप सोचो कि ये जो मान लो प्राइम मिनिस्टर को मोबाइल चाहिए एक अच्छी कंपनी का, ओके, एंड ही इज परचेजिंग फॉर फर्स्ट करो सैमसंग या आईफोन परचेज कर रहे हैं वो ऑब्वियसली, और क्या परचेज करेंगे, ओके. तो इस तरह के मोबाइल परचेज करते हैं, बट इंडिया में ऐसा कोई मोबाइल कंपनी नहीं है जो कि टोटली जिसका सारा सॉफ्टवेयर और सब कुछ इंडिजिनस हो. इनफैक्ट इवन इफ वी आर प्रोड्यूसिंग मोबाइल्स इन आवर कंट्री, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रिलाई ऑन माइक्रोमैक्स. In fact, it's not
टोटली इंडियन कंपनी, जो भी इसका जो बेसिकली चिप्स वगैरह सारी चाइना से बन के आती है. एंड इवन इफ वी could produce a mobile phone in our own country, then also this Android version, तो वो कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे, तो विंडोज इंस्टॉल करेंगे मोबाइल में या एंड्रॉइड इंस्टॉल करेंगे और मे भी कुछ एप्पल का मैक इंस्टॉल कर लो. ओके, बट दैट ऑल these softwares are from the foreign countries only. ओके, तो विंडो भी डेटा लीक कर सकता है, एंड्रॉइड भी, गूगल भी, इनफैक्ट यूएसए कंपनी भी डेटा लीक कर सकता है. So that is why it's very much needed that we create this digital infrastructure in our own country. So for that we can use this digital sovereignty. और ये हो सकता है मे भी आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए. ओके, फुल क्वेश्चन आ जाए जीएस में या मे भी एससे आ जाए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी? सो ये सारे एग्जांपल्स आपको उसमें लिखने हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, या कुछ और भी एग्जांपल आप कलेक्ट करो. ओके, सो दीज ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड बाय 2022. 2022 तक बेसिकली आपको ये ऑब्जेक्टिव सारे अचीव करने हैं जो ये पॉलिसी में बेसिकली बताए गए. सो अदर फीचर्स ऑफ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2022. अदर फीचर्स क्या है? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, to provide universal broadband connectivity at 50 Mbps, 50 megabytes per second to every citizen. Just think, okay, that every citizen would get a speed of 50 Mbps. तो इस तरह का broadband हमको provide करना है. And to provide 1 gigabyte per second connected to all gram panchayats. Okay, तो gram panchayats को basically हमने 1 gigabyte per second की speed से basically इनको implement देना by 2020. So this is the first target of this policy. एंड इसके अलावा 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक का हमें देना है कनेक्शन ग्राम पंचायत को बाय 2022. और ग्राम पंचायत से कनेक्शन हम क्यों देना चाह रहे हैं? बिकॉज अभी आजकल क्या होता है कि यदि आप लोगों ने कभी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में आप जाकर देखा हो आप लोगों ने, सो देयर आर कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ओके, इन दिस ग्राम पंचायत समिति. इसमें क्या होता है, ये स्टेट चीफ मिनिस्टर होता है, वो सारी पंचायत के साथ एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है. ओके, एंड तो उसमें क्या होता है कि जो पंचायत समिति में या ग्राम पंचायत से बैठ के इनफैक्ट एक ऑनलाइन पूरी लोगों से भी बात कर सकते हैं. ओके, जैसे मोदी जी सबसे टॉक करते हैं, ओके, कभी किसी स्कीम के ऊपर लेकर किसी गांव की महिलाओं से बात कर लेते हैं. सो हाउ इट कुड बी पॉसिबल? थ्रू ऑब्वियसली दिस इंटरनेट कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. सो ऑब्वियसली इट इज एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस. ओके, सो इंश्योर कनेक्टिविटी टू ऑल अनकवर्ड एरियाज, attract investments of US dollar of about $100 billion in the digital communication sector. So these are basically targets. And apart from that, train 1 million manpower for building new age skill. Okay, so itne around 10 lakh manpower को हमको basically train करना है to with this digital infrastructure. Okay, and to expand IoT ecosystem. IoT stands for Internet of Things, to 5 billion connected devices. Okay, तो 5 billion devices को basically हम लोग Internet of Things provide करना है. Internet of Things हम already बात कर चुके हैं. तो जो भी conventional जो things थे, whether it could be AC, whether it could be fan, okay, whether it could be street lights, whether it could be these conventional bulbs, okay, all these things should be connected with the internet, whether it's a traffic lights, whether it is this toll booth barriers, okay, everything need to be connected with the internet. Okay, that is basically Internet of Things. So establish a data protection regime. यदि आप लोगों को याद हो तो data protection एक बिल भी आया था, and there was a committee also to have this data protection. Okay, that committee put a recommendations. Okay, ये सब आपको न्यूज़पेपर में काफी कवर हुआ सब चीजें. सो इसके ऊपर बेसिकली एक डेटा प्रोटेक्शन एक रिजाइन बनाना ताकि लोगों को डेटा प्रोटेक्शन रहे बेसिकली, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. एंड टू सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. जो हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी हम लोगों ने बेसिकली सिक्योर करना. जैसे कि हम लोग फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और डिजिटल सॉवरेनिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को दिमाग में आया कि जैसे हम लोग जो पहले जो ये जो डेबिट कार्ड इसका एग्जांपल नोट कर लो आप लोग. ये जो डेबिट कार्ड थे जो पहले हम लोग यूज करते थे, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड यूज करते थे. वी वर ओवर डिपेंडेंट ऑन दिस बेसिकली कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स. बट अभी हमारे पास रूपे, हमने खुद का एक डेबिट कार्ड बनाया, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ दैट वी आर मेकिंग दिस इंडिजिनस production of this kind of digital infrastructure. Okay, so RuPay card is the best example.
कि कैसे हम लोग डिजिटल सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं। To secure digital communication infrastructure and services, to establish a national digital grid by creating a national fiber authority. So, जो national digital grid बना रहे हैं हम लोग by installing the fiber wires. Okay. So for that we are also creating a national fiber authority, which will control this fiber technology. And fiber wire के ऊपर जैसे 4-5 साल पहले एकदम से जब ये भारत नेट मिशन लॉन्च हुआ तो ये बात चली थी कि फाइबर वायर डाली जाएगी। इनफैक्ट भारत नेट से पहले भी ये मिशन था, इसका नाम चेंज करके भारत नेट रखा गया था, बात करेंगे हम लोग। ओके, तो उस टाइम ये जो 11-12 के आसपास एक फाइबर वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, फाइबर वायर, और ये कैसे इसलिए काम करते हैं इसके बारे में बात कर भी चुके हैं आई थिंक हम क्लास में। ओके, ऑफलाइन क्लासेस में इसको बात कर चुके हैं। फाइबर वायर में बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, जनरली जो बेसिकली डेटा ट्रांसमिट होता था पहले कन्वेंशनली, दैट वाज इन फॉर्म ऑफ द करंट। करंट ज्यादातर वायर से, जैसे ये टेलीफोन वायर है उस तरह से करंट बहता था, उससे बेसिकली जब वायरलेस टेक्नोलॉजी आई उसके बाद। लेकिन जो फाइबर टेक्नोलॉजी है उसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ करंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, उसमें लाइट बेसिकली मूव करती है, और लाइट जो ये मूव करती है दैट ट्रांसमिट्स द डेटा। दैट इज, और जो लाइट की स्पीड है ऑब्वियसली ज्यादा है, वो इनफैक्ट लाइट की स्पीड हाईएस्ट है, जितने भी बेसिकली स्पीड हम दे सकते हैं किसी की, तो लाइट की स्पीड ज्यादा, तो इसकी स्पीड मिली नहीं है हम लोगों को। सो लाइट की स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब डेटा ट्रांसमिट ज्यादा होगा, तो इंटरनेट स्पीड हम लोगों को ज्यादा मिल सकती है। ओके, एंड दिस जो ऑप्टिकल फाइबर जो वायर होती है इसके अंदर लाइट ट्रांसमिट होती है, एंड जो ऑप्टिकल फाइबर की वायर की कोटिंग इस तरह से होती है कि जो लाइट ट्रांसमिट होती है दैट मेक्स ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग क्लास में समझ चुके हैं, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो भी लाइट होती है अंदर से रिफ्लेक्ट होती रहती है एंड देन इट ट्रांसमिट्स द डेटा। ओके, so this is a fiber technology and creating a collaborative institutional mechanism between center, states and local bodies for common rights of faith. Okay, so we want to make a coordination effects of the center, state and local bodies, and again it is a example of cooperative federalism in 3-tier structure of India. पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ सेंटर स्टेट्स की बात होती थी अभी, लेकिन आजकल यदि कुछ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कुछ आता है ऑब्वियसली सेंटर स्टेट्स को तो हम कंसर्न करना ही है, साथ में यदि आप लोग लोकल बॉडीज को भी इसमें इंक्लूड कर लो तो डेफिनेटली your answer will be get enriched. Okay, so obviously लोकल बॉडीज भी आजकल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आते हैं, 3-tier structure. So इन ये तीनों बॉडीज मिलके काम कर रही हैं, that is why it can be example of cooperative federalism. So now next we will talk about the BharatNet. Okay, it's a related topic. This is a related topic basically broadband mission. So earlier the name of this mission was this National Optical Fiber Network, which was started in the 2011. सबसे पहले जो मिशन लॉन्च हुआ था ऑप्टिकल फाइबर को डालने के लिए, that was launched in 2011. और उस टाइम ये यूपीएससी में काफी हॉट टॉपिक होता था कि ऑप्टिकल फाइबर का बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, that is based on total internal reflection of light. तो ये सब चीजें बच्चे काफी पढ़ते थे। So it was launched in 2011 and was renamed as BharatNet project in 2015. So when this NDA government came, that this government renamed this project as BharatNet project. एम यही था, एम वही था कि हमें जितने भी ये विलेजेस हैं उनको बेसिकली फाइबर वायर से जोड़ना है, और जितनी पंचायत हैं उसमें हाई स्पीड नेट प्रोवाइड करना है। So flagship scheme to connect 2,50,000 ग्राम पंचायत, तो इन ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए बेसिकली हम लोग ने भारत नेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया विद ब्रॉडबैंड। इस पंचायत को ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ना था। लेकिन जो ब्रॉडबैंड बेसिकली जो हमारे पास मिशन आया है, जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, उसमें ये भारत नेट में ये थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लो कि जो ब्रॉडबैंड मिशन है उसको मतलब जो इंडिविजुअल सिटीजन्स है उन सबको नेट प्रोवाइड करना। ओके, उन सबके पास ये नेट पहुंच जाए, ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंच जाए, ये ब्रॉडबैंड मिशन में आता है। बट इन दिस भारत नेट प्रोजेक्ट, इसमें मतलब विलेजेस में वायर डालना और जो ग्राम पंचायत को जोड़ना, तो ये भारत नेट के अंदर आता है। ओके, सो इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL। सो ये भी याद रखने की इंफॉर्मेशन है कि याद रखना है आप लोगों को, दैट दिस भारत नेट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर company, Bharat Broadband Network Limited. This project was implemented by this company. A special purpose vehicle, SPV, set up under Department of Telecom in 2012. So this particular SPV was created in 2012
BharatNet formed the backbone of the ambitious Digital India program. So Digital India program, that every thing should be connected digitally, whether it is the services from government to citizens, okay, and whether it is a this financial payment system, so that we could get rid of this hard payment, and we should make a digital payments. So all these things are in this Digital India program. So this, because Digital India program tabhi basically implement ho sakta hai if we have the internet connectivity. If every citizen has internet connectivity, then only we can think of the Digital India. So till December 2019, 1.3 lakh gram panchayats were connected under BharatNet project. So our target was 2.5 lakh gram panchayats, to connect 2.5 lakh gram panchayats. In December 2019, ये हमारा target था. But now, till this December 2019, we have achieved this much of connection, 1.3 lakh gram panchayats. To promote utilization of BharatNet services, free Wi-Fi services are provided to connected villages. Okay. तो उसके साथ ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर विलेज लेवल पे वाईफाई, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वाईफाई हॉटस्पॉट्स बना रही है, फ्री वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो भी विलेजेस कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि लोगों को यूज करना आ जाए एक दफा इंटरनेट कि कैसे यूज करते हैं. ओके, एंड बाद में फिर गवर्नमेंट से चार्ज करेगी लोगों से. टिल नाउ अराउंड 48,000 विलेजेस कनेक्टेड टू वाईफाई एक्सेस. अराउंड 48,000 विलेजेस को वाईफाई एक्सेस मिल चुका है अभी तक. ओके, now we'll see what is Digital Communication Commission, because ये भी एक न्यूज में था that in 2018 the Telecom Commission that was set up in 1989 was redesignated as Digital Communication Commission. So जो टेलीकॉम कमीशन था, बेसिकली इसका नाम चेंज किया हम लोग 2018 में, और कुछ नहीं किया, इसका नाम चेंज किया, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन. और इसलिए चेंज किया है बिकॉज जो पहले जो टेलीकॉम यूज होता था वो लैंडलाइन और इस तरह के फोन के लिए यूज होता था 1989 में. बट नाउ बिकॉज द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड, नाउ द इंटरनेट केम एंड अदर थिंग्स आर केम, एंड दैट इज व्हाई इट वाज मोर कंड्यूसिव टू चेंज इट्स नेम एज डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन. बिकॉज इसका रिसेंटली 2018 में नाम चेंज हुआ था, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन हुआ था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें ये आपको देने के लिए यहाँ पर डाली है. दैट इन दिस डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, जो कमीशन है, ओके, इसका कंपोजिशन क्या है ये समझ लो आप लोग. दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन प्लस 4 फुल टाइम मेंबर्स प्लस 4 पार्ट टाइम मेंबर्स. And this commission is headed by obviously chairman, who is the secretary of Department of Telecom, and he acts as the ex-officio chairman of the DCC, this Digital Communication Commission. एक तरह से वो सेक्रेटरी भी रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, और दूसरी तरफ ये चेयरमैन भी बनेगा डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन. And apart from that, this chairman, there are 4 full-time members who are also the ex-officio secretaries to DOT. ex-officio secretaries हैं एक तरह से DOT को, दूसरी तरफ ये इनके full time members रहेंगे DCC के. And apart from that, there are 4 part-time members. These are secretaries to Government of India from various departments. For example, CEO of Niti Aayog is a part-time member of the DCC. Okay. And what are the functions of this DCC? DCC करता क्या है ये भी समझ लो आप लोग. It formulates the policy of Department of Telecom. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है फॉर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट. फिर गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है. एंड इट आल्सो प्रिपेयर द बजट फॉर द डीओटी फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर एंड गेटिंग इट टू अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जो बजट प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है. ये भी इसका एक फंक्शन है डीसीसी का. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, implementation of government's policy in all matters concerning telecommunication. Apart from this policy formulation, apart from this decision making, okay, for this policy formulation, it also helps in the implementation of government policy in all matters concerning telecommunication. So this is it with this particular DCC. So in this broadband mission, national broadband mission, government has also want to release this broadband readiness index.
गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स, बिकॉज हम हर स्टेट में हर विलेज को बेसिकली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एक इंडेक्स रिलीज करेगी, गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स। अभी गवर्नमेंट सिर्फ बात की, हम लोग इस तरह के इंडेक्स निकाला करेंगे टू मेजर, टू बी डेवलप टू मेजर द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंड्यूसिव पॉलिसी इकोसिस्टम विद इन ए स्टेट और यूटी। एक तरह से स्टेट और यूटी में कंपटीशन हो, ताकि पता लगे कि कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी में बेसिकली ज्यादा डिजिटली कनेक्टेड है, तो उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स बेसिकली रिलीज करने वाली है गवर्नमेंट। ओके, so this is it with this current class. So within 5 or 6 minutes we will start with this art and culture.